It was hard. It was very, very hard because, you know, these are the people you've seen through your work, and your work has always been about looks. Of course. And अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न विथ हमा। तो हमने अपने लास्ट वीडियो में सोनाली बेंद्री का ये इंटरव्यू देखा था जो कि करीना कपूर ले रही थी, और इसमें इस्तेमाल किए गए तमाम इंग्लिश के वर्ड्स, एक्सप्रेशंस और बहुत कुछ सीखा था। तो ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चले वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। by the time I came here, I remember when I landed, I really had my wig and everything planned, and I will put it on. And then, you know, by the end of that flight, I was so exhausted. And, you know, it was so awkward to be in a wheelchair. And I said, you know, I don't want to be in a wheelchair, and I'm tired. And I don't want it. I said, you know what? Chuck it. I'm not going to wear it. This is what it is now. Let me just go. I didn't expect there to be so much of press outside, Yes, but I knew it would be out there. But when I stepped out and I said, no, I'm going to walk out, and bald. It was hard. But I must say that all the press that was there, they were so quiet and they were so gentle with me. Yeah. I had not seen that side of paparazzi, so to say, Yeah. ever. I remember when I landed, I really had my wig and everything planned, and I will put it on. लैंड का मतलब होता है उतरना, किसी जगह पहुंचना, कहीं पर उतरना। खास तौर पर लंबे सफर के बाद अगर आप कहीं पर उतरे तो उसे लैंड कहेंगे। एग्जाम्पल है, व्हेन आई लैंडेड इन न्यूयॉर्क आई फेल्ट अ रश ऑफ एक्साइटमेंट। पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, कोई चीज पहनना या कोई भी चीज अपनी बॉडी से अटैच करना, उसे कहेंगे पुट ऑन। एग्जाम्पल है, I will put it on for the party. I was so exhausted, and you know, it was so awkward to be in a wheelchair. Exhausted का मतलब होता है थका हुआ। जब आप बहुत ज्यादा थके हो, extremely tired हो, तो उसे कहेंगे exhausted. Example है, after the hike I was exhausted. Awkward का मतलब होता है अजीब, अनकंफर्टेबल या फिर एम्ब्रेसिंग सिचुएशन हो तो उसे awkward कहते हैं। एग्जाम्पल है, इट वॉज सो awkward when I forget her name. I said, you know what? Chuck it. चक का मतलब होता है छोड़ देना, तर्क कर देना, गिव अप कर देना, क्विट कर देना किसी चीज पर, उसे चक कहेंगे। एग्जाम्पल है, आई एम सो टायर्ड ऑफ दिस प्रोजेक्ट, लेट्स चक इट एंड स्टार्ट फ्रेश। I didn't expect there to be so much of press outside. Yes, of course. न्यूज़पेपर और जर्नलिस्ट सबको मिलाकर कलेक्टिवली इनको प्रेस कहा जाता है। But when I stepped out and I said, no, I'm going to walk out. स्टेप डाउन का मतलब होता है कि कोई जगह छोड़ना या रिजाइन करना किसी पोजीशन से, अपना ओहदा छोड़ देना, उसे कहेंगे स्टेप डाउन। एग्जाम्पल है, शी डिसाइडेड टू स्टेप डाउन फॉर हर रोल। वॉकआउट का मतलब होता है बाहर निकलना। एग्जाम्पल है, he walked out of the meeting frustration. They were so gentle with me. Yeah. I had not seen that side of paparazzi, so to say, Yeah. ever. Be gentle with someone का मतलब होता है कि किसी के साथ नरम होना, किसी के साथ काइंडली बिहेव करना, अच्छे तरीके से बिहेव करना, उसे कहेंगे जेंटल। Be gentle with someone का मतलब होता है किसी के साथ नरम होना। एग्जाम्पल है, द स्टाफ वर सो जेंटल विथ मी ड्यूरिंग माई ट्रीटमेंट। पेपराजी, तो आपने अक्सर सेलिब्रिटीज की पिक्चर्स, वीडियोस देखे होंगे जो कि देखने से आपको पता चलता है कि ये वीडियोस और पिक्चर्स छुपकर निकाली गई हैं, छुपकर ली गई हैं। तो वो जो फोटोग्राफर ऐसी पिक्चर्स लेते हैं या ऐसे वीडियोस बनाते हैं, उसे पेपराजी कहते हैं। It was heartwarming to actually, you know, see and know like I just how did you not were saying. want any sympathy. But the love that I got, I'm really grateful for it. Of course. अक्सर लोग empathy और sympathy में इतना फर्क नहीं जानते, you know, I think. So तुमने लोगों की sympathy के साथ कैसे डील किया? Empathy is lovely. It gives you, it helps you Yeah, and strength. supports you. And I feel sympathy pulls you down. So, in fact, कई बार जब लोग आते थे कि ये क्या हो गया, I used to just shut them down, and I say I don't think ये conversation I don't want, and I would just not speak to them again for a really, be it my own mom and dad or whatever. Also, it took them a little while to understand that
you know, I don't want to see the crying and the thing, because that pulls me down. It's Yeah, not, of I know course. what you're going through and I appreciate it. But at this point of time, if I fall weak, then, you know, it's a downward spiral. Yeah. Because every day you're propping your mind up to say, yes, I am going to get up. It's going to be a wonderful day. So you have to pull yourself out of it. And when you have empathy, it helps you with the pulling out, but the sympathy drags you down. Yeah. And so I would just, anybody who was being very like I said the word bechari, Yeah. shut the door on that and, like, you know, say that I will see you 6 months later. It was heartwarming to actually, you know, see and know, like, हार्ट वार्मिंग का मतलब होता है कि दिल को खुश कर देने वाला. एग्जाम्पल है द मूवी हैड अ हार्ट वार्मिंग एंडिंग. अक्सर लोग एम्पैथी और सिंपैथी में इतना फर्क नहीं जानते, यू नो, आई थिंक. सो तुमने लोगों की सिंपैथी के साथ कैसे डील किया? आपने इतनी सही बात कही है, बिकॉज एम्पैथी और सिंपैथी में बहुत फर्क है. एंड सिंपैथी और एम्पैथी. तो अगर आप भी कंफ्यूज हैं इन दोनों वर्ड्स में तो आज हम ये सीखेंगे. सिंपैथी का मतलब होता है कि हमदर्दी, किसी के दर्द को महसूस करना और किसी के लिए बुरा फील करना. कोई अगर किसी मुश्किल सिचुएशन में है और आप उसके लिए बुरा फील कर रहे हैं तो उसे सिंपैथी कहेंगे. एग्जाम्पल है I sent her a card expressing my sympathy after her loss. एम्पैथी का मतलब होता है एहसास, किसी की फीलिंग्स को समझना, किसी के दर्द को समझना, उसे कहेंगे एम्पैथी. एग्जाम्पल है शी शोड ग्रेट एम्पैथी टुवर्ड हर फ्रेंड ड्यूरिंग टफ टाइम्स. love that I got, I'm really grateful for it. ग्रेटफुल का मतलब होता है शुक्रगुजार. एग्जाम्पल है आई एम ग्रेटफुल फॉर योर हेल्प. हो गया. I used to just shut them down. And शट डाउन का मतलब होता है कि बंद करना, किसी चीज को बंद कर देना या फिर किसी को खामोश करवा देना. कोई कुछ कह रहा है और आप उसको खामोश करवा दे तो उसे शट डाउन कहेंगे. एग्जाम्पल है आई जस्ट शट देम डाउन व्हेन दे स्टार्टेड गॉसिपिंग. also it took them a little while to understand that लिटिल वाइल का मतलब होता है कि थोड़ी देर. अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम को कहेंगे लिटिल वाइल. एग्जाम्पल है आई विल बी बैक इन लिटिल वाइल. then, you know, it's a downward spiral. डाउनवर्ड स्पाइरल का मतलब होता है नीचे की तरफ जाना. मतलब कि आगे बढ़ने की बजाय आप और ज्यादा नीचे होते जा रहे हैं. तो आप इसे इस तरह समझें कि कोई सिचुएशन अगर खराब है तो वो सिचुएशन सही होने की बजाय और ज्यादा बिगड़ती जा रही है तो आप उसे कहेंगे डाउनवर्ड स्पाइरल. कि वो सिचुएशन बेहतर तो नहीं हो रही लेकिन पहले से ज्यादा खराब होती जा रही है तो उसे डाउनवर्ड स्पिल कहेंगे. एग्जाम्पल है हर हेल्थ वाज इन अ डाउनवर्ड स्पाइरल. मतलब कि उसकी सेहत सही होने की बजाय और ज्यादा बिगड़ती जा रही थी. Because every day you're propping your mind up to say yes. प्रॉपिंग योर माइंड का मतलब होता है कि अपने जहन को सहारा देना. कोई भी थॉट लेकर, कोई भी ख्याल लेकर अपने जहन को सहारा देना, अपने जहन को सपोर्ट करना. आप इस तरह समझ लें कि कोई खराब सिचुएशन चल रही है और आप परेशान होने की बजाय अच्छे वक्त का इंतजार कर रहे हैं और ख्याल कर रहे हैं कि ये वक्त हमेशा इस तरह नहीं रहेगा, अच्छे दिन भी आएंगे. तो इस तरह क्या कर रहे हैं कि आप उस ख्याल से अपने जहन को तैयार करें, अपने जहन को सहारा दे रहे हैं अच्छी चीज की तरफ. तो उस प्रोसेस को कहेंगे प्रॉपिंग योर माइंड. एग्जाम्पल है प्रॉपिंग योर माइंड विद पॉजिटिविटी इज इम्पॉर्टेंट. Have empathy, it helps you with the pulling out, but the sympathy drags you down. Yeah. पुल अप मतलब होता है ऊपर उठाना, किसी चीज को अपलिफ्ट करना या फिर किसी शख्स या किसी चीज को ज्यादा इनकरेज करना. एग्जाम्पल है फ्रेंड्स शुड पुल यू अप व्हेन यू आर फीलिंग लो. ड्रैग डाउन का मतलब होता है कि नीचे ले जाना, किसी को और ज्यादा बुरा फील करवाना, उसे कहेंगे ड्रैग डाउन. एग्जाम्पल है नेगेटिविटी कैन ड्रैग यू डाउन. Shut the door on that and, like, you know, say that I will see you 6 months later. शट द डोर ऑन समवन का मतलब होता है किसी के लिए दरवाजा बंद कर देना. मतलब कि आप किसी को अंदर ना आने देना या फिर किसी को अपनी जिंदगी से ही निकाल देना, किसी शख्स को रिजेक्ट कर देना कि आप इससे कभी बात ना करेंगे या फिर आप कभी इस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे. एग्जाम्पल है ही फेल्ट हर्ट व्हेन शी शट द डोर ऑन हिम.